So that's why I'm doing this back again. I hope you don't have any problem. Board is blur, sir. Blur है क्या? Yeah, okay. As well, what I expected. Other dimension का मतलब चाहिए. एग्जाम देखो, अदर डायमेंशन बोले तो चलो आपको लास्ट डायमेंशन क्या है वो तो मालूम होना है ना. तो एग्जाम दिए ना बेटा आप ग्रैंड टेस्ट. दैट ग्रैंड टेस्ट का ये क्वेश्चंस है ना बेटा, ऑल आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स. वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है बेटा. 2020, 19, 18, 17. 2020, 19, 18, 17 में ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में जो पूछा हुआ ना क्वेश्चंस नीट में, वो क्वेश्चंस दिए थे हम लास्ट संडे. जो आप एग्जाम लिखा ना बेटा, देयर आर ऑलरेडी द क्वेश्चंस व्हिच वी ऑलरेडी गॉट इन प्रीवियस ईयर्स. So that I am very happy that will perform very well in next exam also. I am okay, thank you. Then assertion reason नहीं रहेगा बेटा. Assertion reason नहीं रहेगा क्योंकि when the aims is merged with the need, aims में रहते थे assertion reason. अभी aims also, aims का एग्जाम भी अभी नीट में ही चल रहा है ना बेटा. So that's why what we are talking about, assertion reason का questions बंद हो गया. That's why we are not talking about assertion reasoning and we are not giving about assertion reason. I found Ferritima postuma in my garden. Okay, good. Good finding. Light is reflecting on the board. एक मिनट देख ले हम. और एक लाइट है वो भी डाल देंगे. रिफ्लेक्शन बंद होगा शायद. अब देखो बेटा, अब देखो कैसा है. देखो अभी क्लियर. ओके, सो इज इट क्लियर? अब ये क्लियर है क्या? सो क्वेश्चन पेपर तो एक नया डायमेंशन है बेटा. आप एनसीईआरटी का ही आएगा, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है. वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, बट in a different way, which tests the quality of the student, which tests the quality of the student. गूगल सर्च वाला रहता ना, गूगल सर्च में आंसर नहीं आएगा ये क्वेश्चंस को. ऐसा एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन किए थे हम. जनरली ऐसा एक 10 to 20% रहता बेटा वैसा, बट आई क्रिएटेड 45 क्वेश्चंस. नेगेटिव मोड ऑफ क्वेश्चनिंग बोलते हैं हम इसको. दैट इट्स अ मेथड ऑफ स्पेशल प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चनिंग बेटा. अगर ये एग्जाम में, संडे का ये एग्जाम में आपको फुल आए तो समझो यू आर द 100% एलिजिबल टू गो इनटू द मेडिकल कॉलेज. The new dimension बोले ना हम. I found so many small Ferritima postuma near my house, but I can't take it. Don't take it. छोड़ दो उसको. आपको खाली क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी को पढ़ना है एंड द वर्कशीट विच आई सेंड टू यू वो फिलअप करना होगा आपको. वी हैव एनफ टाइम नाउ, 1 वीक टाइम है बेटा. आपको वो फिलअप करना होगा. वर्कशीट फिलअप करो. पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना वो जो दिया है ना हमको, आपको पूरा एनसीईआरटी का है ना वो. हर एक लाइन एनसीईआरटी से लिया एंड टेबल जैसा बनाया ना. सो वो प्रैक्टिस करो, खाली वो प्रैक्टिस करो, बस हो जाता. ओके, देन लेट्स कंटिन्यू द फ्रॉग. फ्रॉग में क्या बोल रहे थे बेटा हम? फ्रॉग बॉडी इज डिविजिबल इनटू. फ्रॉग एग्जिबिट. फ्रॉग का फीचर्स क्या बोले हम? पोइकिलोथर्मिक एनिमल है ना. फ्रॉग इज पोइकिलोथर्मिक एनिमल.
which maintain the body temperature, cannot maintain the body temperature constant, we said poikilothermic animal. So intolerable conditions, when it appears over, the frog will go for hibernation in winter, estivation in summer, to protect from the predators. Protection from the predator, it is changing its color from the surrounding environment, based on the surrounding environment. Camouflage बोले थे हम. Okay, that we are seen yesterday. Poikilothermic, hibernation, estivation, camouflage, which we discussed yesterday. And body is divisible into head and trunk बोले बेटा. Body is divisible into head and trunk बोले ना हम. Head. Head where a pair of nostrils, mouth रहेगा बेटा, mouth के ऊपर a pair of nostrils are present. A pair of nostrils. Okay, then pair of eyes are there, a pair of eyes. And eyes का क्या है बेटा speciality? They are protected by nictitating membrane, a transparent membrane which covers the eye when the frog is swimming. Nictitating membrane बोलते हैं हम. A pair of eyes, nictitating membrane, the transparent membrane which protects the eyes. So either sides of the eye, tympanum present, ear drum बोल सकते बेटा हम इसको. Tympanum, it is for hearing. Tympanum for hearing. So this is all we said here. And trunk. और क्या बोले बेटा यहाँ पे frog में neck and tail are absent. Neck and tail are absent. So यहाँ तक आए ना हम. That एक सिंगल स्क्रीनशॉट में आ गया पूरा yesterday's class. ट्रंक के बारे में देखेंगे हम. ट्रंक where four limbs and hind limbs. So आप तो देखा होगा ना फ्रॉग को. So आप बताइए four limbs and hind limbs में who is short and who is longer? Longer वाला कौन है? That four limbs and hind limbs. Or you are saying four limbs and hind limbs are equal in size? Yeah, hind limbs are longer and highly muscular. Longer beta and highly muscular. Okay. And digits है ना बेटा. Four limbs are shorter. Four limbs shorter. Hind limbs longer. यहाँ पे 4 digits रहता बेटा. Four limbs are having 4 digits. Fingers. Then hind limbs में that 5 digits are present. 4 digit वाला and 5 digit वाला. Hind limbs are with 5 digits. And ये digits के बीच में बेटा एक webbed membrane रहता. Webbed membrane. ऐसा. For what? आपको तो पता होगा शायद. The web. The webbed membrane. Fingers के बीच में रहता. For what बेटा? Very good. Swimming in water. For swimming in water. कुछ नहीं है फ्रॉग में. That very simple information we have. अगर थोड़ा मुश्किल आप समझे तो फिजियोलॉजी में that वो ह्यूमन फिजियोलॉजी आए तो वो भी समझ जाएगा आप. ये very little है बोल के. So these are all the external features बेटा. अभी sexual dimorphism देखना है. That male female frog का differences देखना है हमको. चलो screenshot ले लो. 4 limbs and hind limbs and along with that yesterday's. एक मिनट बेटा हम यहाँ पे ओके चलो आप ले लो. दूसरा बनाएंगे हम. ओके चलो मूव ऑन. और क्या बोल रहे हैं हम. अभी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में बात करना है.
sexual dimorphism. Already you have completed 2 animals before this. Earthworm, cockroach, हो गया ना बेटा? इसमें दोनों में आप कहाँ देखे आप sexual dimorphism बोल के? Where you have seen this particular sexual dimorphism बेटा? Sexual dimorphism कहाँ पे आए थे आपको? देखना है हमको. Okay. Yes, very good. Earthworm में क्यों नहीं है sexual dimorphism? I am asking you. Earthworm में sexual dimorphism, why it is not there? आएगा आंसर? कॉकरोच ओके बेटा. Earthworm में sexual dimorphism क्यों नहीं है? Why there is no sexual dimorphism in earthworm? वेरी गुड सुपर. शाम दे रहे हैं आपको सर्टिफिकेट. आपको आएगा 45 इंटू 4 118. नेक्स्ट वीक एग्जाम में भी आएगा. वो बाइसेक्सुअल है बेटा. बाइसेक्सुअल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं रहता ना. यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आर ओनली हैविंग दिस फीचर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोल के. चलो डिफरेंसेस क्या है? सो मेल कॉकरोच में हम देखे थे एनल स्टाइल है ना. मेल फ्रॉग इज हैविंग सम स्पेशल फीचर्स. The male frog is having first digit of forelimb. First digit of forelimb is having vocal sacs beta. Vocal sacs. First digit of the forelimb is having vocal sacs रहता वहां पे. Voice amplifiers बोल सकते हैं हम इसको. We can say this as voice amplifier. This is called voice amplifier. Means voice को amplify करता. You might have heard over frog का sounds आते ना rainy season में. यही season में frog का जो sounds आता ना बेटा. What do you think? So who is creating sound? Male frog or female frog? Male frog or female frog? Male female both are having vocal cords. Vocal cords तो रहता बेटा. So यहाँ पे speakers भी है. Vocal sac. Yeah, male making sound. और दूसरा क्या है बेटा? First digit of the forelimb is having vocal. Oh my God! Excuse me. Have to excuse me. Vocal sacs for forelimb में कैसे रहता? Either sides of the throat. Sorry. Either sides of the throat, vocal sacs are present, beta. Then first digit of the forelimb. First digit of the forelimb. Copulatory pads are present. Copulatory pads, which are helpful for the male during copulation to press the abdomen of the female. करेंगे और reproductive system में करेंगे. But यहाँ तक the male characteristic feature. So ये दोनों नहीं है तो we can understand that is going to be female. That's all. फ्रॉग हैव पॉइजन सर. है बेटा. ऐसा भी फ्रॉग है. पॉइजनस फ्रॉग्स अलग सा रहता. जब हम राना टाइग्रिना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट राना टाइग्रिना. ये राना टाइग्रिना इज नॉट पॉइजनस फ्रॉग. ओके, ये तो नहीं है बेटा. राना टाइग्रिना इज नॉट पॉइजनस फ्रॉग. एंड सम अदर आस्किंग हियर, डू वी हैव क्लासेस फिजिकली टुमारो? Till you get intimation beta, till you get intimation, don't take decision. That I think it was little bit postponed. आपको information आए तो, so these kind of questions should be asked only towards the administration. Administration को पूछना है बेटा. So that why that's what I am answering. आपको वही बोल रहे हैं मैं, that आपको
एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना होगा। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द एलिमेंटरी कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करना है और फिजियोलॉजिकल फीचर्स लोकोमोशन से शुरू करेंगे हम। कौन सा लोकोमोशन रहता बेटा फ्रॉग में? फ्रॉग कैन स्विम, है ना, स्विमिंग, लीपिंग विच इज फेमस एक्चुअली, वॉकिंग करता ही। सो फॉर स्विमिंग, फॉर लीपिंग, फॉर वॉकिंग, जो भी हो, forelimbs and hind limbs are helpful for the particular process. Forelimbs and hind limbs are helpful for walking, leaping, then swimming, swimming ka locomotion, the running, whatever the frog do, all that is helpful for this. So एक हो गया बेटा फिजियोलॉजी में, एक हो गया हमारा ओके। चलो now let me go for digestive system of the frog. Digestive system. Digestive system of the frog include alimentary canal and associated glands. जो बोले हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं हम, एलिमेंटरी कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या रहता बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोले तो? लिवर, गॉल ब्लैडर, you can take pancreas, salivary glands, all these are going to called as digestive glands and alimentary canal. From mouth to anus we can say alimentary canal. The gut or alimentary canal बोले तो mouth to anus. So थोड़ा है बेटा, that means we have a limited explanation here. So इसके साथ चलना होगा। इसका फुल एक्सपेंशन रहेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेगा। अब तो थोड़ा है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी हियर। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ऑल वी आर गोइंग टू सी लिटिल बिट हियर दैट। चलो हो गया ना, ये हो गया ना। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो। So mouth opens into buccal cavity. Mouth opens into buccal cavity. यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इश्यू है बेटा। चलो हम ह्यूमन से शुरू करें। एक्चुअली व्हेन वी एंटर इनटू द ह्यूमन वी हैव टू कंपेयर विद द फ्रॉग। अभी पहला फ्रॉग आया ना, सो ये क्या है बेटा ह्यूमन बीइंग में? दीज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, है ना, नॉस्ट्रिल्स। and this is said to be mouth. Mouth opens into buccal cavity. Mouth opens into buccal cavity. Nostrils opens into nasal chamber. Nostrils opens into nasal chamber. And a buccal cavity and nasal chamber के बीच में जो है ना बेटा, हम इसको palate बोलते हैं हम। You can feel the palate. आपका टंग ऊपर करो, इसमें जा रहा है क्या? नासल चैम्बर में जा रहा है क्या? नहीं ना। सो हमारा ये साइड फोटो ऐसा, ओके। सो आपका टंग ऊपर करो, जा रहा है क्या? अंदर जा रहा है क्या? नासल चैम्बर से नहीं, एक पार्टीशन है ना, पैलेट बोलते हैं हम इसको। द पार्टीशन इज कॉल्ड
palate. Okay, so buccal chamber and nasal chamber are separate, beta, and nasal chamber opens into a pharynx called nasopharynx. Human being का बोल रहा मैं, फ्रैक का नहीं. Buccal chamber opens into oropharynx. Buccal chamber, beta, opens into the oropharynx. That in nasopharynx, nasal chamber opens into nasopharynx. Sir, अब फ्रैक का कैसे रहेगा देखेंगे हम. Simply we are going to say that frag में nostrils opens into, mouth opens into the buccal chamber, nostrils opens into, ये mouth है बेटा, चलो we'll make a hole here, we'll say mouth. So mouth and यहाँ पे eyes, okay, not to confuse all of you. So mouth and nostrils एक ही कैविटी में ओपन होता बेटा. ये बीच में जो पार्टीशन है ना वो नहीं रहेगा. ओके, सो यहाँ पे बकल चैम्बर बोल सकते हैं हम. एंड ऊपर का क्या है? नासल चैम्बर. नो पार्टीशन एट ऑल. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ओके, यहाँ पे क्या रहेगा? फैरिंग्स रहेगा. अलग सा फैरिंग्स नहीं रहेगा. ऊपर वो नासोफैरिंग्स, नीचे ओरोफैरिंग्स, ऐसा कुछ नहीं रहेगा. सो क्या बोलते हैं हम इसको? ये पूरा कैविटी को एक ही बात में बोलेंगे बेटा. फुल कैविटी इज कॉल्ड बकोफैरिंजियल कैविटी. बकोफैरिंजियल कैविटी. Okay, we say it as a single cavity, bacopharyngeal cavity. No partition at all. यहाँ पे जो partition रहना चाहिए ना बेटा, वो नहीं है वहां पे. So that's why एक ही cavity रहेगा. इसको क्या बोले हम? Bacopharyngeal cavity. Means when we are breathing, हवा कहाँ पे जा रहा है? ऊपर से जा रहा है. When you are taking food, हाँ कहाँ से जा रहा है? Mouth buccal cavity ऐसा जा रहा है ना. ये सब एक ही जगह है. सिंगल रूम, नो पार्टीशन, नो बेडरूम, नो किचन, नो डाइनिंग, ऐसा कुछ नहीं रहता. खाली एक ही रूम रहता वहां पे. यहाँ पे हमारा नहीं, यहाँ पे तो अच्छा है ना. ओके, सो चलो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. हम आपका डिफरेंस दिखाएंगे हम. नो पार्टीशन एट ऑल. वी हैव टू टॉक अबाउट पार्टीशन नहीं है वहां पे. ओके, क्लियर हो गया. चलो, मीन्स आई एम इरेजिंग दिस. आपको समझ में आएगा. चलो देखिए, एक पार्टीशन नहीं है तो पूरा एक ही जगह बन गया ना. दैट मीन्स हमारा हाउस में रहता ना ये डाइनिंग हॉल, एक हॉल, बेडरूम, किचन, वॉल्स निकाल दिया तो पूरा एक ही रूम रहेगा ना. ऐसा रहेगा फ्रैग में. सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बकोफैरिंजियल कैविटी. Okay, so what we are talking about, एक ही cavity रहता बेटा, bacopharyngeal cavity. Okay, so then that is the first thing you have to remember. And tongue के बारे में, हमारा tongue देखे तो, human being का tongue बोलूं, हमारा tongue देखे तो ऐसा रहेगा बेटा. Attaches to the posterior side, anterior side free रहता. But frog का tongue anteriorly attaches. सो पोस्टीरियरली फ्री रहता बेटा. ओके, चलो ये फ्रैग के अंदर एंटीरियरली अटैचेस, पोस्टीरियरली फ्री रहता. हमारा ऐसा रहता, जो आपका टंग मूव कर रहा है ना ऐसा. बट ये बकल कैविटी में फ्रैग का टंग एंटीरियरली अटैच रहता बेटा. दैट्स व्हाई जब चाहे वो बाहर आता. लंबा टंग नहीं है वो, तो थोड़ा सा लंबा है हमारा ऊपर, बट इतना लंबा नहीं है. क्यों? बाहर कैसे आता सर? बाहर कैसे आता? anteriorly attaches, posteriorly free. जब कल पूछे थे ना कोई, this way answered here. NCERT में तो नहीं है. टंग तो रहेगा. Then let's start the digestive system. Mouth opens into the buccal chamber. buccal chamber बोले हम, buccal chamber, nasal chamber अलग सा नहीं रहता. And it opens into the pharynx. Pharynx opens into esophagus.
Pharynx opens into esophagus, a short tube रहता बेटा esophagus बोल के. क्यों short tube क्यों बोल रहे हैं? neck तो नहीं है ना? neck नहीं है. That's why esophagus is short. Short tube. And esophagus opens into the stomach beta. Esophagus opens into the stomach. Stomach opens into the intestine. You might have know that intestine is having two portions, small intestine and large intestine, है ना? पहले तो लिखेंगे हम intestine बोल के, intestine. Okay. So intestine opens out in the form of a rectum, large intestine का. Okay, rectum. So rectum opens into the cloaca. A single opening बोल के रहता बेटा cloaca. This is a sequence. Actually, we got a sequence from cockroach. Maybe you may get from frog also. That's why first of all we are introducing along with the sequence. Stomach में क्या रहता बेटा? HCl रहता and gastric juice रहता, है ना? Gastric juice. स्टमक का डाइजेस्टिव एंजाइम्स को HCl बोलते हैं हम, गैस्ट्रिक जूस भी बोल सकते हैं हम. इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल जूस रहता, एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट द इंटेस्टाइन फूड मटेरियल, इंटेस्टिनल जूस बोल के. ओके, देन HCl गैस्ट्रिक जूस. और क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलने का. एक क्लोएका के बारे में बार बार आएगा हमको, दैट ए कॉमन ओपनिंग है वो. अभी एनस ओपन्स इनटू द रेक्टम, ओपन्स इनटू द एनस and anus opens into the cloaca. अभी तो इतना. ओके, चलो अब यहाँ पे कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क. आई एम रेडी. Yes, yes, let me see. What is the function of copulatory pad? आएगा बेटा, reproductive system में आएगा. So actually I am very particular. So I always, you might have seen over, I always slide a bit out from the camera, not to take along with me बोल के. But people will take only when I am there. Sir, esophagus opens into the stomach. हाँ बेटा, esophagus opens into the stomach. नीचे नहीं जा सकते ना, इसलिए ऊपर आए थे हम. अगर नीचे गए तो आपको नहीं दिखता ना. थोड़ा टर्निंग लिए हम, टर्निंग. आप नहीं लेने का, आपको नोट्सबुक में तो इतना प्रॉब्लम नहीं रहता ना. या nasal chamber and buccal cavity. No excretory organ present in frog. Excretory organ का अभी यहाँ पे क्यों बेटा? आएगा, वो भी आएगा. सर ये पढ़ाई सो भूल जाते, जल्दी याद कैसे रखना और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वापस पढ़ने का. प्लीज हेल्प मी. सो फर्स्ट टाइम रीडिंग इज सेकेंड टाइम रीडिंग थोड़ा डिफरेंस है बेटा. सो पढ़ाई पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बोले तो हम कुछ नहीं कर सकते. दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट ऑन योर इंटरेस्ट ऑन योरसेल्फ. So the frog never drinks water, but how does the frog absorb water through the skin? Sir, the frog never drinks water. How does the frog absorbs means अभी वो फिजिक्स में चले जाता. How does the frog absorbs water? फिजिक्स में चले जाता. एक ये देखिए बेटा, स्पॉन्ज रहता ना हमारे, ये स्पॉन्ज रहता ना, पानी में डाल दिया तो वाटर अब्सॉर्ब करते नहीं. एंड इफ आई ड्रॉप, अगर पेन ड्रॉप किया तो वाटर अब्सॉर्प्शन नहीं करते क्या? नहीं ना. वी हैव आंसर इन फिजिक्स आई थिंक, है ना. पोरस नेचर, माइन्यूट पोर्स रहता है बेटा बॉडी के ऊपर और स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट पोर्स रहता. दे आर गोइंग टू मेक द अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. बट ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमको नहीं चाहिए. या ओके, चलो एक एक करके देखेंगे हम. ओके, समवन आस्क्ड मी, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक कहानी तो बोल सकते हैं हम. एटलीस्ट वन स्टोरी आई कैन सी. क्या करें सर, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई करने में.
दैट बार बार पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. ओके, क्या करें सर? ऐसा भी एक सेम क्वेश्चन which Sania Mirza faced over when she is practicing in the tennis court. Some new fresh student ज्वाइन हुआ अभी अभी वही ट्रेनिंग एकेडमी में, वो आके पूछा सानिया मिर्जा को, क्या पूछा? मैडम, हाउ यू प्रैक्टिस फॉर 10 to 15 hours in a day, where after practicing 3 to 4 hours even we are undergoing fatigue, थक जाते हम, अब 10-15 आवर्स प्रैक्टिस कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन आए थे सानिया मिर्जा के सामने, तो आके डायरेक्ट पूछा. 3-4 घंटे प्रैक्टिस किया तो हमका थक जा रहे हम. सो हाउ यू प्रैक्टिस फॉर 10 to 15 minutes? सो एक्चुअली हर आंसर क्या हो सकता बेटा? हर आंसर what she might have answered over? Passion, interest. नहीं, एक ही बात बोला, look for another game. She said, नहीं, happened incident है, I'm not creating. Look for another game. ये आपका गेम नहीं है ये. After 3-4 hours you are in that you are going to आप थक जा रहे बोले तो look for another game. ये आपका गेम नहीं है. Okay, so that means ये hard answer होगा बेटा. Sir, I am not getting interest. So क्या कहाँ पे है इंटरेस्ट? अगर दोस्त कहीं बुलाए तो बाहर, अभी इंटरेस्ट हो रहा है सर, वहां पे इंटरेस्ट हो रहा है. अगर कोई टीवी सीरियल आ रहा है तो, एक नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज आए तो, अमेजन में मूवी आए तो वहां पे इंटरेस्ट हो रहा है सर, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्या करे सर? ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या बोलना है? द सेम आंसर सानिया मिर्जा जो बोला ना, इंटरेस्ट आना चाहिए बेटा. ऐसा कोई दवा नहीं मिलता, that we don't have any medicine that to create interest, that but there is a medicine अंदर लेने वाला नहीं है. Just look towards your father, look towards your mother, that कितना मेहनत करते हो for your sake, and look towards the other people out of Telangana. If nearly 1 lakh students are reading, so उसको इन लोगों को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं रहता बेटा. मीन्स आपके सामने कौन है? A person with 22 years of experience who made thousands of doctors, quality lecturer. I'm not talking me, we are talking about all our team. Okay, इतना quality lecturers आपको मिला, देखने को मोबाइल मिला, लैपटॉप मिला, कंप्यूटर मिला. So this is called opportunity. That means here मेहनत करके the parents are providing that information, that all the requirements आपके सामने रखा हुआ ना. अभी खाली एक ही चाहिए, क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए. You have to develop that particular, you have to develop. So बाहर से कोई नहीं आएगा, कोई मोटिवेशन स्पीच है तो 10-15 मिनट में आपको मोटिवेशन होगा, बट बाद में आफ्टर 1 hour 2 hours क्या होगा? That same place again, where we are, there you are. So that's why motivation बाहर से नहीं आने का बेटा, अंदर से आने का है. So think about your parents. Think about your parents. That's all. Think about your parents. सब आएगा, मोटिवेशन आएगा, डेडिकेशन आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा, मेडिकल सीट भी आएगा. Okay, so don't read for lecturer's sake, don't read for other's sake, just for mother's sake, just for father's sake. You just get that. But for me, my example, for myself, if you take, I just want to become the greatest. I just want to become celebrity in the people. I just want to become famous. I just want to earn more only because of my father. So mind mein wo tha. So that's why I reached to the maximum. वादा किए थे हम फादर को, क्या? गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कॉर्पोरेट में आके, दैट आई विल अर्न मोर देन द गवर्नमेंट जॉब, ऐसा वादा करके आए थे, एंड गॉट सक्सेसफुल इन 2008 itself. कोई तो रहना चाहिए, those whom you are working with, to whom you are working for. Okay, so that everyone will work for themselves only, but ये एज में बेटा आपको कोई इंस्पिरेशन होना चाहिए. फॉर माई फादर सेक आई हैव टू गिव मेडिकल सीट टू माई फादर. गिफ्ट देना है, बर्थडे आए तो वो गिफ्ट देगा ना आपको.
अभी तक कुछ दिया क्या उसको? अभी दिया तो भी उसका, हाँ, दैट मनी लेके आपको पॉकेट में डाल के आपका पॉकेट मनी बोल के देते ना, ऐसा नहीं। बहुत बड़ा गिफ्ट क्या होगा पेरेंट्स को? पेरेंट्स को क्या होगा बेटा? यूर मेडिकल सीट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गिफ्ट, है ना? यूर मेडिकल सीट इज द बिगेस्ट गिफ्ट, वो देना पड़ेगा। सो माइंड में कुछ ऐसा वैसा डिस्टरबेंस आया, हम फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकते ना। सो बाहर बुलाया, फेंक के टेक्स्ट बुक फेंक के जाते ना बाहर। फ्रेंड बाहर बुलाया, फ्रेंड चिट चैट को बुलाया, ओके, देन हम टीवी के लिए कुछ भी करते ना, कुछ अच्छा सा प्रोग्राम आया तो बंद बुक। सो these kind of distractions when you are getting, just close your eyes 1 to 2 minutes, think about your parents, 1 to 2 minutes think about your parents, उसका मेहनत समझो, that joined in a place where there is a possibility, probability of the medical seat where all ingredients are ready there, they are ready to provide you whatever what you want. So वहां वो जगह पे ज्वाइन किए थे वो, so that means you got a good opportunity. Then only thing your dedication, dedication नहीं आया, determination नहीं आया, just think about your parent, 1 2 minutes माइंड पे रखो उसको, 2 मिनट के बाद इंटरेस्ट आएगा ऐसे ही टेक्स्ट बुक में। ओके, मूविंग ऑन, थोड़ा खाना देते बेटा हम फ्रॉग को। क्या, व्हाट डू यू थिंक? सो फ्रॉग इज हेर्बीवोर और कार्निवोर? फ्रॉग इज ए कार्निवोर बेटा, कार्निवोर, हेर्बीवोर नहीं, फ्रॉग हेर्बीवोर नहीं। जस्ट आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, एलिमेंटरी कैनाल where it is going to be longest, longest elementary canal है तो क्या होगा बेटा? डाइजेशन थोड़ा प्रॉब्लम है तो एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग रहना चाहिए। अगर डाइजेशन थोड़ा प्रॉब्लम है तो, सो अमॉन्ग द टू, कार्निवोरस एंड हेर्बीवोरस, दोनों में डाइजेशन कहाँ पे फास्ट होता है? हेर्बीवोर्स और कार्निवोर, पहले वो बताओ। हेर्बीवोर एंड कार्निवोर, पीपल के अंदर थोड़ा मिथ है बेटा, डाइजेशन फास्ट कहां पे होता? हेर्बीवोर और कार्निवोर? यहां डबल आंसर्स आए थे। डेफिनेटली डाइजेशन इज यहां पे फास्ट होता बेटा, बिकॉज वी आर ईटिंग एनिमल मटेरियल, है ना? एनिमल मटेरियल या प्रोटीन, अब्जॉर्प्शन नहीं, डाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं हम। यहाँ पे प्लांट कंटेंट रहता ना, सेल्यूलोज रहता, प्लांट में सेल्यूलोज रहता बेटा, थोड़ा मुश्किल होगा इसको डाइजेशन करने में। दैट्स व्हाई द एलिमेंटरी कैनाल ऑफ हेर्बीवोर इज लॉन्गेस्ट बेटा, एलिमेंटरी कैनाल ऑफ हेर्बीवोर इज लॉन्गेस्ट because digestion take longer period of time, because digestion take longer period of time. So digestion faster in carnivore, that's why यहाँ की elementary canal तो short रहता बेटा। So I am announcing now the frog is carnivore, frog is carnivore, चलो बोल दिए हम, frog is carnivore, digestion faster रहता, non vegetarian है frog, that's why the elementary canal is short, elementary canal is short। इसमें थोड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन था ये। ओके बेटा, एर्थवॉर्म में बकल चैम्बर, नासल चैम्बर, इतना बड़ा बात नहीं बोल सकते बेटा। एर्थवॉर्म में तो नासल चैम्बर नहीं रहता, नास्ट्रिल्स है तो नासल चैम्बर है ना। एर्थवॉर्म
मैं इतना बड़ा बातें नहीं कर सकते. बकल कैविटी है, we can say at least, but you can't say that buccal chamber, nasal chamber, palate. ऐसा कंपैरिजन के लिए earthworm is not eligible बेटा. So we have to do more comparison with earthworm with cockroach, frog with human being. जैसे हम cockroach बताते हैं ना, at the time I compared more issues with the earthworm, and now we are talking about the frog. Frog बोले तो आपको human beings से compare करना पड़ेगा. Sir, in future time when I am explaining human being, that I'll ask you a frog में कैसा है, how it is there in the frog, ऐसा पूछते हम. Okay, then now फ्रॉग के बारे में बोल दिया हम. फ्रॉग इज कार्निवोर, एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट इन कंपेयर विद द हेर्बीवोर्स. एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट रहता बेटा बिकॉज डाइजेशन इज सो इजी. ओके, देन सो बोल दिए हम फ्रॉग इज कार्निवोर. और क्या बोले, एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज इट इज कार्निवोर, हेंस एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट. ओके, एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट रहता बेटा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होमोडॉन्ट डेंटिशन रहता बेटा. होमोडॉन्ट, एक्रोडॉन्ट, प्लूरोड, पॉलीफियोडॉन्ट. इतना नहीं लिख रहे, एटलीस्ट होमोडॉन्ट तो लिखना पड़ेगा. ऑल टाइप्स ऑफ टीथ आर सेम, ऑल द टीथ आर सिमिलर. यू माइट हैव रिमेंबर्ड ओवर ह्यूमन बीइंग में तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ रहता ना, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार. हेटेरोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन बोलते हैं हम इसको. यहाँ पे होमोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन इज प्रेजेंट. ओके, टंग इज बाइलोब. टंग, बाइलोब टंग रहता बेटा, मींस टंग इज बाइफर्केटेड लाइक दिस. देख क्या होगा शायद बाहर आए तो टंग. इंसेक्ट्स लेते ना वो, इंसेक्ट्स खाने के लिए, दैट फ्रॉग इंसेक्टिवोरस है ना वो. बाइलोब. Sticky to catch the insects. Insect आए तो just it will attach here. So sticky, bilobe and sticky. Okay बेटा. Then और क्या बोलना है, just खाली digestion बोलना है और कुछ नहीं बोलने का. Directly jump into the digestion. चले यहाँ तक ले लो. Next frame में पूरा digestion लिखेंगे हम. Okay. चलो बकल कैविटी से इसोफेगस तक आए हम. इसोफेगस, then stomach, food materials will reach to the stomach. Stomach में आएगा बेटा, and stomach is having HCl and gastric juice. HCl रहता बेटा, gastric juice. Gastric juice include proteolytic enzymes. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रहता बेटा. प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइसिस डाइजेशन. डाइजेशन डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं हम. डाइजेशन इज नथिंग बट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रहता. HCl का तो आपको मालूम है. ओके, देन यहाँ की पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स इन द स्टमक इज कॉल्ड partially digested food materials in the stomach. Digested food in the stomach is called anyone? Partially digested food materials in the stomach is called. होमोडॉन्ट का कुछ नहीं है बेटा, ऑल टीथ आर सेम टाइप रहता. हमारा इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार्स है ना, 4 टाइप्स रहता ना. यहाँ पे एक ही टाइप है, सिंगल टाइप. सेम साइज, सेम टाइप. नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड. पार्शियली बोले तो पार्शियली. इसका और क्या वर्ड ढूंढ के लाना है आपको? Chyme. Very good. Partially digested food materials.
ओके सो स्टमक का हो गया. स्टमक HCl गैस्ट्रिक जूस, थोड़ा प्रोटीन डाइजेशन भी होता बेटा, एंड खाइन. ओके देन स्टमक ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम. ड्यूडिनम को देखना पड़ेगा. लेट मी मेक ए लाइन हियर. ड्यूडिनम. देन स्टमक ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम बेटा. ड्यूडिनम रिसीव. ड्यूडिनम बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन. स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम इलियम रहता. ओके स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम receive a duct called hepatopancreatic duct. hepatopancreatic duct. NCERT में जो बोला वो लिखना है. ये अच्छा ये काम करेंगे. दोनों रखेंगे आपको समझ में आएगा. कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं बेटा हम इसको. That hepatopancreatic duct or common bile duct. Okay, so the common bile duct, hepatopancreatic duct, is coming from the liver. Okay, and pancreas and gallbladder. So ये क्या है इन तीनों का कहानी वो देखना पड़ेगा. लिवर का क्या है काम बेटा? लिवर सिक्रेट बाइल जूस. Liver secrete bile juice. Gallbladder store bile juice. Gallbladder क्या करेगा बेटा? Store bile juice. Pancreas secrete pancreatic juice. Pancreas इसमें क्या रहेगा? Pancreatic juice रहेगा, which contain digestive enzymes. पैंक्रियास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहेगा बेटा. पैंक्रियास कंटेन द पैंक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके सो दैट मींस हियर द juices which are going to be mixed here in the duodenum. In the duodenum क्या क्या आ रहा है बेटा? bile juice is coming through the duct, common bile duct, from the gallbladder and from the liver. लिवर सिक्रेट बाइल जूस, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस एंड पैंक्रियास का पैंक्रियाटिक जूस. अभी जो इंटेस्टाइन में क्या रहेगा बेटा? इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस रहेगा. इंटेस्टाइन में क्या रहेगा? इंटेस्टिनल जूस रहेगा. द बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस डाइजेस्ट द फूड मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, जो भी हो. पर्टिकुलरली बताना है तो बाइल जूस का काम बताया. बाइल फर, बाइल जूस फर. बाइल जूस फर emulsification of the fats. Bile juice for what beta? Emulsification of fats. So आएगा immediately आएगा question. I know I'm not looking towards the mobile, but बोल सकते हम emulsification of fats का मतलब क्या है? Emulsification of the fats का मतलब क्या है बेटा? Cutting into pieces which facilitate the digestion easily. Cutting into pieces. Fat material बड़ा molecules रहता ना, so fat material को fat pieces जैसा cut करना. Means here I'll say the example. Do you know Halls, Vicks, candy बोलते हैं हम इसको, candy, candy. So अंदर यहाँ पे रखते ना बेटा हम, Halls और Vicks जो भी हो यहाँ पे रखते हैं हम. कितना टाइम लगता है पूरा डिसॉल्व होने में? How much time it will take over for the dissolution of the total? आप सबको तो मालूम होगा ना कितना टाइम लगता है बेटा? हॉल्स बकल कैविटी में डाल के 10 minutes, 2 minutes. 2 minutes is also right actually. For some people 30 minutes. क्या फर्क क्या है? So halls जैसा है तो
मीन्स हाल डाल दिया अंदर, ऐसे ही रख लिया तो क्या होगा, स्लोली डिजॉल्व। बट सम पीपल क्या करते बेटा, इसको क्रश करते हैं ना, पीसेस करते, अंदर डाला, क्रश कर दिया, है ना, कैंडी बोलते हैं वैसे चॉकलेट को, सॉलिड रहता वो, अंदर लेने के बाद क्रश करते ना हम, क्रश को क्या बोले हम, व्हाट यू कैन से, या 1 मिनट वाला यही किया, 1 मिनट वाला क्या किया बेटा, क्रश कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रश्ड एंड सेंड द सलाइवा, है ना, इसको हम एमल्सिफिकेशन बोलते हैं हम, चूइंग, ओके, चूइंग, इसको हम एमल्सिफिकेशन बोलते हैं हम, मीन्स ऐसा ही है तो थोड़ा टाइम लेगा ना डाइजेशन में, डिजॉल्वेशन में टाइम लेगा ना, अगर आप क्रश किया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा बेटा, सरफेस एरिया विल इंक्रीज ओवर, याद रखिए ये सब आने वाला है ह्यूमन बीइंग में, जस्ट तैयारी हो रहा है समझो, ऐसा मेन ईयर यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं है हम, ह्यूमन बीइंग आए तो जस्ट खाली ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं फ्रॉग में, बट यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है तो हर एक कंपोनेंट का बताना पड़ेगा आपको, अमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइनोपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, लाइकवाइज द लिस्ट ऑफ एंजाइम सीखना पड़ता बेटा, चैप्टर नंबर 16। सो व्हाई वी आर लर्निंग फ्रॉग, थोड़ा तैयारी कर रहे हैं हम, बिरयानी के सामने सूप खा रहे हैं हम, फ्रॉग, so that means introducing the names at least, so names का expansion होगा हमको human being in digest system में, चलो ये कर दो बेटा, पूरा डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा ना, डाइजेशन completely occurs in the small intestine with the help of the digestive juices, digestion occurs in the small intestine बेटा, digestion occurs in the small intestine. सो बाद में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके एसएस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट, चैप्टर 16 इक्वल टू गार्ड चैप्टर, व्हाट गार्ड चैप्टर, हो गया बेटा आपका स्क्रीनशॉट, एसएस बोलते हैं ना आप, एसएस, चलो चलो हम आई थिंक ओके, मूविंग ऑन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, चलो बेटा विल मूव टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, कैसे होता बेटा रेस्पिरेशन, डू यू नो, एम्फीबियस इन नेचर बोले ना हम, इट लिव्स इन द वाटर एंड ऑन लैंड, दोनों में रहता ना, सो पहले वाटर में कैसे करेगा देखेंगे हम, इन वाटर इट इज डूइंग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते बेटा हम, मीन्स मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन के ऊपर, अगर ये स्किन आए तो स्किन के ऊपर जो मॉइस्टनेस रहता ना बेटा, वहां पे ऑक्सीजन इज गेटिंग डिजॉल्व एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अंदर आएगा, सो अगर ये आप स्किन समझे तो वे कहाँ पे हो, सेम मैकेनिज्म, earthworm और frog जो भी हो, whatever the animal having this kind of skin as a respiratory organ, skin तो moist रहना चाहिए, skin always it should be moist, वो moist skin के अंदर oxygen will be dissolved over and oxygen will go inside, it's called cutaneous respiration. In land,
लैंड के ऊपर। एक बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन बोल के है बेटा, bacopharyngeal respiration. I think you might got an idea if I say bacopharyngeal. bacopharyngeal बोले तो जो बोले ना हम, माउथ बकल चैम्बर नासल चैम्बर पूरा मिलके एक ही कैविटी है वो, सो वहां का एक रेस्पिरेशन हो सकता लिटिल बिट। देन पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग रेस्पिरेशन बेटा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोले तो लंग। देन as usual cutaneous respiration is also possible, skin respiration, cutaneous respiration is also possible. Okay, so but खाली पानी पूछा तो in water aquatic condition में क्या होता, you have to remember that cutaneous respiration. And do remember इन तीनों में important कौन है, again same cutaneous respiration is very important in due respect to the frog. On land also, land के ऊपर भी मेजर ऑक्सीजन यहाँ से आता है बेटा, cutaneous respiration से आता. Okay, so that's it, that is about the respiratory system. Any doubts regarding respiratory system? या इन वाटर हर रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग नहीं कहते हम, ब्रीथिंग तो हम करते. पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोले तो लंग रेस्पिरेशन, या फ्रॉग्स आर हैविंग लंग्स, इफ द रेस्पिरेशन इज विथ लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं हम. नहीं कुछ नहीं बोला बेटा, बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन बोले हम, कुछ नहीं बोला, मैकेनिज्म नहीं है हमको सिलेबस में. बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन, दैट बियॉन्ड ऑफ द रिकॉर्ड बोलना है तो बोलेंगे हम, बट वहां पे तो नहीं लिखेंगे. जो एनसीईआरटी में नहीं है ना, मेरा हाथ नहीं लिखेगा वहां पे बोर्ड पे. माइट हैव सीन ओवर, आप फ्रॉग को देखिए, दैट आप देखे तो वो नीचे है ना बेटा, वो हेड के नीचे द बॉडी कैविटी, द बकल कैविटी विल मूव ऑन लाइक दिस, स्लाइड होता, वो ऊपर नीचे जाता. मीन्स अगर आप देखे तो इफ यू सी द फ्रॉग, यहाँ पे जगह पे ऊपर नीचे जाता बेटा. दैट मीन्स हियर एट द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड इज डूइंग बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन बोल के कर रहे हैं. ओके, बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन. पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोले तो बकल कैविटी से हवा जाएगा लंग्स तक, लंग में गैसियस एक्सचेंज होगा, देन अ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर विल कम आउट. इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है बेटा, फ्रॉग में भी है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. या इट विल स्वेलिंग लाइक ऊपर नीचे, लाइक हार्ट बीट जैसा ऊपर नीचे जाता, आप देखे तो आपको. चलो मूविंग ऑन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए. वी नीड टू गो लिटिल हेड, आपको हमको देखना पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, बिकॉज we have this particular repetition for the circulatory system in chapter number 18. यहाँ पे तो थोड़ा है, बट चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में मिक्स्ड ब्लड का थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सर्कुलेटरी सिस्टम लिटिल बिट मोर. हो गया इसका स्क्रीनशॉट. So this is called right atria, this is called left atria, and these are called ventricles. Heart beta, do you find any difference with frog heart with our heart? आपको कुछ फर्क दिख रहा है क्या फ्रॉग हार्ट एंड हमारा हार्ट पे, दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है क्या? पहले वो आंसर दे दो आप हमको.
वेरी गुड. नो सेपरेशन इन वेंट्रिकल. हमारा 4 chambered रहता बेटा. Ours is 4 chambered and there are having 3 chambered heart. Okay, so हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा right atria. We call RA बोले तो right atria. LA बोले तो left atria. Right atria collects the deoxygenated blood with the help of superior vena cava and inferior vena cava. ये दोनों को क्या बोले बेटा हम? Superior vena cava. And this is called inferior vena cava. आपको याद रखना होगा ये सब, even not there in NCERT, because when we are learning our heart, we have to compare with the fish heart, amphibian heart, reptilian heart, and हमारा heart को comparison करना होगा बेटा. That's why you need to know this information. So that 2 precaval veins, 1, 2, and 1 postcaval vein, inferior vena cava, superior vena cava, also called precaval veins. इसको क्या बोले बेटा हम? पोस्ट कैवल वेन. ह्यूमन बीइंग आल्सो सेम नेम्स. ओके. फ्यूज एंड फॉर्म साइनस विनोसस. क्या होगा बेटा यहाँ पे? साइनस विनोसस. ओके. Then what it is doing? It is collecting deoxygenated blood. Sinus venosus is collecting deoxygenated blood. Okay, next यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया, जिसको हम क्या बोले? पल्मोक्यूटेनियस वेन. क्यों बोले पल्मोक्यूटेनियस? फ्रैक्टर रेस्पिरेटरी ऑर्गन 2 है ना सर. बकाओफैरिंजियल वी कैन कंसिडरेबल. पल्मोक्यूटेनियस क्या आ रहा है बेटा यहां से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग. ओके, वेयर इट इज कमिंग? टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रिया. So here deoxygenated blood. So I am writing here also deoxygenated blood. यहाँ पे क्या है बेटा? Oxygenated blood. Right atria opens into ventricle. Left atria opens into ventricle. अब यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? In the ventricle. Ventricles नहीं है वो, ventricle है. अब क्या होगा आपको बताना पड़ेगा. या 2 atria 1 ventricle. अब क्या होगा? वहां के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ की ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स करके मिक्स्ड ब्लड होगा. Here the blood is going to be mixed over. In the ventricle, blood is mixed. This is very important point. You people need to remember. Okay, so okay, from here who is coming? Truncus arteriosus बोल के रहता बेटा. क्या बोले हम इसको? Truncus arteriosus. Truncus arteriosus. So the truncus arteriosus will come out and it divides into 2 branches. That branches again divide into 3 branches. इसका नाम देंगे हम. नाम right carotid, right systemic and right pulmocutaneous. I think you might have understand over वहां पे क्या बोलना है. Left carotid, left systemic, left pulmocutaneous. The diagram is for your understanding only, क्योंकि बेटा ये डोर्सल साइड रहता है ये दोनों वेसल्स. ये कहाँ पे रहता? वेंट्रल साइड रहता. ट्रंकस आर्टेरियोसस. एक साथ दिखाने के लिए we are making some hypothetical diagram here. Then truncus arteriosus, then right carotid, right systemic, right pulmocutaneous. ये mixed blood है ना बेटा, जो mixed blood that only supplied towards the body parts. Right carotid, right systemic, anterior body parts ऊपर जाएगा, ये brain तक जाएगा. Anterior body parts.
then right systemic posterior body parts, left भी same रहता बेटा, right pulmocutaneous, lungs and skin. So that's it. पूरा समझ में आना बोले तो हमको एक बार ह्यूमन बीइंग भी देखना पड़ेगा. So in future time we are going to see the human being बोल के इतना बता दिया आपको. Heart of frog. चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. I'll draw the empty diagram. नहीं हार्ट डायग्राम, ये डायग्राम डालने के लिए नहीं बेटा. हार्ट का डायग्राम डालने के लिए नहीं, हमको ये समझना चाहिए हाउ डज द एवोल्यूशन इज हैपन. 3 बार आएगा, मीन्स आई एम टेकिंग चांस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया से लेके 3 बार आएगा. एक एनिमल किंगडम में आएगा फ्रॉग के हार्ट के बारे में, एक ह्यूमन बीइंग चैप्टर नंबर 18 में आएगा हार्ट के बारे में, फ्रॉग के हार्ट. एक सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आएगा हार्ट एवोल्यूशन के बारे में. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर. कोई बोल रहा है सर एनसीईआरटी में नहीं है, क्यों पढ़ा रहे आप? पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जरूरत है बोल के. कॉन्शियस रहता ना कोई, एनसीईआरटी में नहीं है बोलना मत. गुड एनफ कॉन्शियसनेस. अगर ऐसा है तो आपको दैट एनसीईआरटी पढ़ना है फर्स्ट ईयर में. आई थिंक यू आर द फर्स्ट बैच एक्चुअली. एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ओनली एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, ऐसा पहले से ही करने वाला आप ही होगा बेटा. फर्स्ट बैच डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेसफुल बिकॉज लास्ट ईयर इटसेल्फ वी गॉट कंफर्मेशन. 3 बार क्वेश्चन पेपर आने के बाद हमको कंफर्म हो गया ओनली एनसीईआरटी से आएगा, कोई और जगह पे नहीं है, ओनली एनसीईआरटी पे है हमारा किस्मत. सो दैट्स व्हाई इवन वी बिकेम मच कमर्शियलाइज्ड ओवर. चलो बेटा पूरा समझ में आने के लिए आई विल ड्रॉ वन मोर टाइम दिस डायग्राम विथ मींस ये ओरिजिनल डायग्राम नहीं है बेटा, बिकॉज सुपीरियर विना कैवा, इंफीरियर विना कैवा इंक्लूडिंग साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस एक जगह पे नहीं रहता, एक जगह पे नहीं रहता. आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन. अब देखिए दिस टाइम आई एम नॉट लेबलिंग, आपको लेबल करना पड़ेगा. So ये 1 है बेटा, ये 2 है, 1 2 3, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल. ओके, सो ये क्या है बेटा? द 2 precaval veins and 1 postcaval vein which opens into the sinus venosus. These 2 include 4. This is 4 and this is 5. Precaval vein, postcaval vein. This is 6. Sinus venosus बोलते हैं हम इसको. Next, pulmocutaneous vein, number 7. Next, truncus arteriosus, number 8. Iska branches, right and left. Then again from there, 3 branches more. Like this. So I am writing here 9, 10, 11. I am writing here also 12. 13, 14. चलो बेटा, it's just for your practice. मीन्स सब नाम आने वाला है हमको. एनिमल किंगडम पार्ट 2 में पहला आएगा बेटा, देन आफ्टर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में आएगा, देन आफ्टर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आएगा. सो दैट्स व्हाई नाम याद रखना पड़ेगा आपको, नाम पूरा याद रखना पड़ेगा. ओके देन स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो एंड सेंड इट बैक अगेन. Send it back again and we'll continue the topic tomorrow. Thank you.